Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, वी हैव अ सुपर से भी ऊपर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे मोटिवेशन करती है, आप लोगों से इंटरैक्ट करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. Right? उसको प्लीज Vedantu_biotonic उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. So students, let's get started with the most important topic that is locomotion and movement. आपको पता है locomotion कितना important है because the skeletal system is very important, the muscles are very important, muscles के parts are very important, Z to Z sarcomere is very important. So without any further delay, let's start locomotion and movement. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करें. Muscular movements very important from MCQ point of view. Very important. चलें शुरू करें. Yes, give me a high five. Give me a high five there, everybody. And guys, like now. First time you joined my class, Kev. Thank you so much. Sliding filament theory करवाया जाएगा वैष्णवी. Guys, like now. Give me a high five and just press on the like button, guys. आपको इतनी बार बोलना पड़ता है. प्रेस ऑन द लाइक बटन, प्रेस ऑन द लाइक बटन, प्रेस ऑन द लाइक बटन. चलो आ जाओ. सीलियरी मूवमेंट्स. सो स्विमिंग राइट ये तो पता लोग इसको अवॉइड कर देते हैं. जब भी मसल्स की बात आती है सीधा सार्कोलेमा से शुरू कर देते हैं या सीधा स्लाइडिंग फिलामेंट. दीज आर वेरी बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स व्हिच द मसल डज एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. डज द पैरामीशियम स्विम? If the paramecium swim, the movements with which the paramecium swims is ciliary movements. Take part in propulsion of excretory products in urinary tubes and flame cells. Flame cells होते हैं lower organisms में. Flame cells are there, so that is ciliary movement. आपके in the ovary, in the fallopian tube for the movement of the egg. In the fallopian tube for the movement of the egg. Fallopian tube में for the movement of the zygote in the egg. Do you have cilia? Yes. Right, everybody? Right? In the proximal convoluted tubule, do you have cuboidal epithelium with brush border? At least 20 times these questions have come. Do you have cuboidal epithelium with brush border? Say yes or no, ma'am. Fallopian tube में cilia होता है. Say yes or no. Very 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 important. Yes, everybody. Do you have it in the trachea, oviducts, vasa efferents? Help in pushing out dust particles and the gametes. Yes. Flagella. Have you heard of porifera or sponges? Right? यहाँ कॉर्नोसाइट्स होंगे. Conocytes, the collar cells,
Write it down. So much of extra information early in the class. Do you have choanocytes? Yes. Do they maintain the regular flow or current of water? Collar cells, flagellar movement. Euglena, flagellar movement. Male gamete, flagellar movement. Right? Hydra, water vascular system. Pseudopodia. If this is your blood vessel, the gap in the blood vessel is called as fenestrae. Does the WBC come out with pseudopodial movement? Does the WBC come out? WBCs, amoeba. Click a snapshot. I'm waiting for you. Very important slide. Click a snapshot fast. Click a snapshot. Any doubts? Done. Can we move ahead? Click snapshot. Excellent. Fenestra are the gaps. Fenestra is the gap in the WBC. Chaliye. Perfect. Now that you've done it, I'm going to be moving ahead. Excellent. Look at this awesome mind map. इसे कहते हैं mind map. Right. इसको देखिए amazing. और अब मैं इसको आपको डिटेल में करवा दूं. Can I do it in detail? पेरीमाइसियम, सार्कोलेमा, मायोसिन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थिक, थिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. एक्सीलेंट. सब कुछ हो जाएगा. अमेजिंग स्लाइड नो. एक काम करो, पहले इसकी प्लेन डायपेटिसिस इज द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी. पहले इसका एक प्लेन स्नैपशॉट ले लो. नो वरीज उर्मिला. थैंक यू सो मच आशिमा. इसका एक प्लेन स्नैपशॉट ले लिया. अब आ जाओ. नाउ व्हाट, first of all, come to the muscle. So we are talking about a muscle and we are talking about skeletal muscle. What muscle? Skeletal muscle. There are three types of muscle. Muscle in the heart is called as the cardiac muscle. The muscle in your esophagus, your stomach, your intestines, your liver, your gallbladder, your pancreas is referred to as your smooth muscle. Muscle in the glands, muscle in the eyes are all your smooth muscles. The muscles of your hands and feet, which are under the voluntary control, which are the somatic muscles, which are the skeletal muscles. The muscles which are attached to your skeleton are referred to as your skeletal muscle. So I am going to be doing the structure of the skeletal muscle and I will try and do everything in one slide. Right? So what is the sarcomere? The contractile part of the muscle. So the contractile part of the muscle which extends from one Z line to another Z line. So from one Z line to another Z line, the part of the muscle is called a sarcomere. Is that clear? I know your heartbeat is increasing with 95 days. Is that clear? It is a longitudinally repeating functional unit. Functional unit is MCQ. What is longitudinal repeating? ये देखिए, ये एक आपकी Z line है, ये एक और Z line है, ये एक और Z line होगी. मान लीजिए दिस वन Z line here. So this is a sarcomere, sarcomere, sarcomere. It is a repeating unit. It is a contractile part of the muscle. इसके पास प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, जिसको हम ट्रोपोनिन सी भी कह सकते हैं, एंड ट्रोपोमायोसिन. लिख लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू बी रबिंग इट. लिख लीजिए ट्रोपोमायोसिन. राइट एवरीबडी. अब स्केलेटल मसल जो है वो लंबे लंबे फाइबर्स में होगी. द स्केलेटल मसल विल बी प्रेजेंट इन लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर्स. सो जो ये फाइबर्स एंड दे आर गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम द आउटसाइड. मायो मींस मसल. सो मसल ऑफ द हार्ट इज देयरफॉर कॉल्ड द मायोकार्डियम. ये लंबे लंबे फाइबर्स में होगी. इट बी लॉन्ग फाइबर्स, मसल fibers. These muscle fibers, जो bundles में muscle fibers हैं, it is covered by a covering called perimysium. Right? Same to you, Anand. It is covered by perimysium. Yes? Right, Ritik? Pay attention. It is covered by perimysium. Perimysium can come as a MCQ क्वेश्चन. अब इस पे आ जाइए. प्लाज्मा, एक फाइबर. पेरीमाइसियम इज लाइक द कवरिंग पूरे बंडल की, बट एक एक फाइबर है. यू हैव वन फाइबर. कैन आई कॉल वन फाइबर इज मायोफिब्रिल? कैन आई कॉल वन फाइबर इज अ स्मॉल लिटिल मायोफिब्रिल? yes or no?
Functional unit is the sarcomere. So myofibril की भी covering होगी. Can I call the covering of the myofibril is sarcolemma, plasma membrane of a skeletal muscle fiber. Now the cytoplasm of the muscle is called as sarcoplasm. The plasma membrane of the muscle is called as sarcolemma. The endoplasmic reticulum of the muscle is called as sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasm, sarcolemma, sarcoplasmic reticulum. Is that clear? ये तीन चीजें याद रखना बहुत जरूरी है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट का एसिटाइल कोलिन सिग्नल देता है, या यू नो व्हाट इज एंड प्लेट, ये आपकी मसल है और ये नर्व आ गई. This is your telodendry of the nerve, the synaptic end bulbs of the nerve. So this is your end nerve and this is your muscle और ये ऐसे जा रहा है, right? It is going like this. Muscle के ऊपर ये ऐसे जा रहा है. So जब ये muscle पे जाएगा and muscle पे जाकर acetyl choline release करेगा, muscle के पास जैसे ही signal पहुंचेगा, where is the signal coming from? The signal is coming from the nerve. तो जैसे ही muscle के पास signal पहुंचेगा, I'm going to tell you a little extra information. Pay attention. So ये जो signal आया, ये signal muscle के अंदर एंटर कर रहा है. लेट मी ड्रॉ इट विद अ ब्लैक कलर्ड पेन. ये सिग्नल मसल के अंदर एंटर कर रहा है. कैन यू सी मसल के अंदर? कैन यू सी दीज एंट्री पॉइंट्स विच आर एंटरिंग द मसल आर कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल्स. इज दैट क्लियर? The entry points are called as T-tubules. T-tubules increase the surface area at least 20 times. It's a previous year asked question. So T-tubules carry the signal down into the muscle. They are referred to as the T-tubules. And the T-tubules, when they go down and they carry the impulse, ये जाते हैं T-tubules all the way to endoplasmic reticulum. They go to endoplasmic रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाकर उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन यू प्लीज सिक्रीट कैल्शियम? यस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन यू प्लीज सिक्रीट कैल्शियम? कैल्शियम हमारी बॉडी में दो काम करता है. कैल्शियम हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड कोऑग्यूलेशन. कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में 9 to 11 मिलीग्राम परसेंट होना चाहिए. सो अगर कैल्शियम का लेवल 9 to 11 मिलीग्राम परसेंट नहीं है, इफ द लेवल ऑफ द कैल्शियम इज नॉट 9 to 11 मिलीग्राम परसेंट, वी विल नॉट बी एबल टू कोऑग्यूलेट द ब्लड और कॉन्ट्रैक्ट द मसल. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम स्टोर्ड है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम स्टोर्ड है. कैन यू सी दैट? और ये उसको रिलीज कर देगा. अब आ जाइए आप थिक और थिन फिलामेंट पे. राइट, अब हमने सारे ये फिलामेंट्स देखने, थिक एंड थिन, एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल अलोंग विद दिस पार्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ? हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टिल नाउ? गिव मी अ हाई फाइव. गाइस कम ऑन, one like guys. Are you able to understand? Yes guys? Yes, perfect. And one like on my screen there. Yes, चलिए आइए. So now before we move to thick and thin, thick filament. अब ये बेटा, this is a very easy way to remember. जो भी चीज, अगर कोई भी चीज फैट है, कोई भी चीज फैट है, बहुत मोटी किताब है, right? A book is very fat, तो उसको मोटा कहते हैं, right? Thick. So thick is referred to as, thick मतलब fat, right? यही मतलब हुआ thick का. इसको यहां लिख देती हूं, वहां दिखाई नहीं दे. और फैट को कहते हैं मोटा. सो थिक फिलामेंट इज योर मायोसिन. व्हाट इज योर थिक फिलामेंट? मायोसिन. थिन means patla. Most of the people who are in film industry take very good care of their health and they are usually thin. Most of the people who are in film industry take very good care of their health and they are thin. That's called as acting करना है. Acting कर रहे हैं, so it's called as actin. Is that clear? Is that clear? So thick, right? Thick myosin strands and their multiple heads projecting from the center of the sarcomere towards the Z discs. And thin strands, troponin, tropomyosin complex. अब मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले ये ऐसे ही समझाती हूँ, माइंड मैप अपने आप बना के. ऑसम ट्रिक नो, मैं आपको एक माइंड मैप बना के समझाती हूँ. रुको, यहां पे समझाती हूं. बहुत 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 इजी है. तो मैं पहले आपको पूरा समझा दूंगी, फिर हम दोबारा एक बार माइंड मैप देख लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी. गिव मी 2 minutes. आ जाइए.
जस्ट गिव मी 2 minutes, इट्स वेरी सिंपल, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई काम ही नहीं है, राइट? सार्कोमेर आपको पता है फंक्शनल यूनिट है। अब आ जाओ, पे अटेंशन नाउ, करेक्ट, पे अटेंशन प्लीज। थिक is called as myosin. How did I tell you? Fat. Thin are the people who are usually doing acting. So I am going to call it thin. Correct? Now dark के बीच में A लिखा है, so anisotropic. A, can you see the A? Light की second word I है isotropic, and anisotropic does not allow light to pass. Is that clear? Does not allow light to pass. Is that clear? A and I bands. Isotropic allows light to pass. Any doubts still here? Any doubts still here? Very easy. Any doubts? Manoj, Karthik, Subhrata, Anand, Cheshta, Karthik, Sunil, done everybody? Very good. अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक बहुत 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 इजी चीज करते हैं। अब बेटा देखो, होता पता है क्या है? होता क्या है? लुक हियर, दीज आर माय 2 hands and what is this? They are sliding on each other, so they are not stopping, they are just sliding onto each other. You can see them, they are nicely sliding onto each other. Yes. Now suppose there is a gap which is created. Did you see a gap? Did you see a gap, everybody? Yes. And there is a knob which is created. So suppose I'm doing like this and suddenly if the knob and the gap comes, has it got stuck? Can I slide my hands? So see, suppose this is happening, suddenly knob and it gets stuck. I'm sliding my hands, suddenly the knob comes and it gets stuck. So what is happening is, this is actin, these are actin, these are the active sites on the actin, the active sites, but they are covered. They are covered. Can you see the active site is covered? Who is covering them? Troponin. First, या अंदर वाले को हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं पहले, और इसके ऊपर एक और कवरिंग है, एक और कवरिंग. कैन यू सी वन मोर कवरिंग? कैन यू ऑल सी वन मोर कवरिंग? Yes, everybody, see I'm using 2 colors. Prabhat, can you all pay attention? So ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसको हम कहेंगे ट्रोपोनिन सी, और ये रहा आपका नीचे, इसको भी और क्लियरली बनाते हैं, मायोसिन. करेक्ट? मायोसिन हेड, वेरी इंपॉर्टेंट. डन. ये क्या है आपके? मायोसिन हेड. अब दूसरी तरफ से शुरू करते हैं करना. सो सबसे पहले क्या होगा? सिग्नल आएगा. सिग्नल विल गो टू टी ट्यूब्यूल. वी आर गेटिंग इट ओवर इन 2 minutes. टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम रिलीज होगा. द कैल्शियम विल गो टू ट्रोपोनिन सी. The calcium will go to troponin C. Is that clear? Say yes or no, ma'am. Calcium कहां जाएगा? Troponin C पे, ब्लू कलर पे. So जैसे ही calcium troponin C पे जाएगा, troponin C will be pulled out. Troponin C out. Troponin C pull कर लेगा tropomyosin out. सी, ये बाहर निकल गए. कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन सी को पुल किया, ट्रोपोनिन सी ने ट्रोपोमायोसिन. इज देयर दिस हॉलो प्लेस? हॉलो प्लेस दिख गई आपको?
यस अब इस हॉलो प्लेस में एवरीबडी ऑन माई स्क्रीन मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल गई, यहां पर अब रिलीज होगा एटीपी और एटीपी इसको पुश कर देगा यहां पे, तो इट विल बी समथिंग लाइक, इट इज कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं इसको? एंड एक्टिन एंड मायोसिन बाइंड कर गया है और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। इज दैट क्लियर? हाय संतोष, वी मेट yesterday ऑल्सो। पावर स्ट्रोक, अंडरस्टूड, इट इज पावर स्ट्रोक एमसीक्यू में। नाउ आई विल टेल यू व्हाट ऑल हैज कम इन द एमसीक्यू, राइट? आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पेन, it's acting a little funny, and probably take this pen. Correct. So this is a MCQ, this is a MCQ, T-tubule is MCQ, troponin C is MCQ, power stroke is MCQ, troponin C binds to calcium is MCQ. And what is the release stroke? Again calcium will be released. अब समझ में आया? Yes, अब ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पर जब दोबारा ट्रोपोनिन कैल्शियम वापस चला जाएगा, ट्रोपोनिन सी वापस आ जाएगा, ट्रोपोमायोसिन वापस आ जाएगा, एंड द मायोसिन हेड विल कम बैक। सो दिस इज बेसिकली योर एक्टिन का स्पेस एंड दिस इज योर मायोसिन, दैट इज इट। और कहां पे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन लगा, यू नो इट। इज दैट क्लियर? कितने लोगों को समझ में आया? राइट एवरीबडी? सो ऊपर एक्टिन है, नीचे मायोसिन का हेड है। जैसे ही सिग्नल आएगा कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सी विल बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन, जगह खाली हो जाएगी एक्टिन की, एक्टिन में जाकर लग जाएगा मायोसिन हेड। इट रिक्वायर्स एटीपी। ये दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। थोड़ी देर बाद कैल्शियम निकलेगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कवर हो जाएंगे, मायोसिन हेड विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। So T-tubule is the one which stores calcium. So name the functional contractile unit of muscle. It has to be sarcomere. Right? T-tubule क्या है? T-tubule are the invaginations. Plasma membrane अंदर आ रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आकर क्या स्टोर करेगी? कैल्शियम। डन? राइट एवरीबडी? चलिए, सो नाउ कैन वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स? एनी डाउट्स? डन एवरीबडी? कैल्शियम इज स्टोर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, हाँ रोटेट हो जाएगा महेश। रोटेट होकर नहीं होता, एक्टिव साइट ओपन इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। क्या एक्टिव साइट रोटेशन की वजह से ओपन होती है? क्या एक्टिव साइट रोटेशन की वजह से ओपन होती है? किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है, इज द एक्टिव साइट ओपनिंग बिकॉज ऑफ रोटेशन? यू ओनली टेल मी, इज द एक्टिव साइट ओपनिंग बिकॉज ऑफ रोटेशन? कुछ रोटेट हो रहा है, वहां सिग्नल आ रहा है, सोडियम एंटर करेगा। आपको पता है आयोन चैनल्स खुलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व मेसल में। याद कीजिए, मैंने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करवाया, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी। कैल्शियम आयंस एंटर करते हैं, यस और नो? कोई रोटेशन होता है? नहीं। ट्रोपोनिन सी में सी क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट है वो। ट्रोपोनिन सी में सी क्या है? कैल्शियम। एक एटीपी लगता है उसको ऊपर ले जाने में, दूसरा एटीपी लगता है उसको नीचे लेकर आने में, यस और नो? राइट, सो यू हैव टू अटेंड दीज क्लासेस। अगर आपके टीचर ने बोला था वहां कोई रोटेशन हो रही है, नो। पावर स्ट्रोक पता चल गया? पावर स्ट्रोक पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। डन? ओके, चलिए। सो आई थिंक अब ये जो चीज है आपको क्लियर हो गई है, ये पूरा मैंने समझा दिया है। मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, थिक एंड थिन, जेड चेन, पूरा क्लियर है? यस एवरीबडी? परफेक्ट। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अब आप यहां आ जाइए। मसल इज ऑलवेज इन बंडल्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मसल इज इन बंडल्स विच आर कॉल्ड फैसिकल्स। राइट, फैसिकल्स के अंदर और फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स के अंदर और छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। रियली स्मॉल, सच अ ब्यूटिफुल स्लाइड। देखो, सबसे पहले ये बोन है और ये मसल है। और डू यू नो टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। चलो आ जाओ। राइट, तो ये बंडल क्या है? आपका मसल का बंडल। अब आपको पता है लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। राइट, सो ये टेंडन है, ये बड़ा फैसिकल है, ये उसके बाद छोटे 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 फैसिकल्स, देन मसल के फाइबर्स एंड रियली स्मॉल वन, रियली स्मॉल। कैन यू सी द लाइट डार्क ऑल्टरनेटिंग बैंड्स हियर? Can you all see the light and dark bands? Yes, ma'am. What are the light and dark bands called? A band, I band, A band, I band, A band, I band. Yes, Prabhat?
What are the light and dark bands called? AI. What are they called? Micro or myofibrils. Myo means muscle. Chalo. So can you see this awesome slide now? Like really awesome. So सबसे पहले आ जाओ, ये outermost covering है आपकी. दिख रहा है? ये देखो मैंने उठा दी covering. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कितनी awesome slide है. Right? क्या आपको दिखाई दे रहा है? Should I make it more clear? I think मेरे हिसाब से तो slide बिल्कुल clear है. Still I will try to make it more clear. Done? मैक्सिमम क्लैरिटी पे है. यस, एक्सेलेंट क्लैरिटी है. एक्सेलेंट क्लैरिटी है. यस एवरीबडी, इज दैट क्लियर? चलिए आइए. सो बेटा स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन एक सा होता है. इट इज ओनली दिस दैट स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल एंड स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो वन ऑफ देम इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम और द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. द अदर इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो आपकी मसल्स है, मसल्स की आउटरमोस्ट कवरिंग सार्कोलेमा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन यू सी हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर? Why the number of mitochondria is more? Because the muscle requires energy to contract. What is the cytoplasm called? Sarcoplasmic reticulum. Now can you see how the network of tubes is going inside? ये आपको blue color का network दिखाई दे रहा है. So these are your endoplasmic reticulum, also known as your sarcoplasmic reticulum, and this is going to store calcium. It's going to store calcium. Yes, Tanya? Because of more energy requirement. Yes, perfect. अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं and then we are going to move ahead. So now can you see that this is a light band? Light. I'm going to write L here. Can you see this is dark? Again this is light, alternating bands. Light band के बीच में you have the Z. और dark के बीच में एक light zone है. Light. देखो जो मैंने बात किया, डार्क के बीच में भी एक लाइट जोन है जिसको एच जोन कहते हैं और इसके बीच की लाइन एम लाइन. सो फ्रॉम वन जेड टू अनदर जेड इज योर सार्कोमियर. अगर अभी आप इसको और ध्यान से देखोगे, वन लास्ट टाइम बिफोर वी मूव अहेड, कैन यू सी द येलो बैंड्स आर थिकर? येलो आपको थिक दिखाई दे रहे हैं और रेड आपको थोड़े थिन दिखाई दे रहे हैं. येस और नो? बस येस और नो में जवाब दो. क्या आपको ध्यान से देखने पे येलो? थैंक यू रचना. Right? So the thick bands are the myosin, the thin bands are your actin. And क्या आपको एक लास्ट चीज नजर आ रही है? One last thing. Okay. See this. यहां पे समझ में आएगा. See this beautiful slide, please. Beautiful slide. Come on, click a snapshot. क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये thick है. So obviously it's going to be dark. So it's going to be myosin compared to ये थिन है. So it's going to be light. It's going to be actin. And can you see at this point they are overlapping? At this point they are overlapping. Such a beautiful. Yes? सब कुछ रिवाइज हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद प्रभात की स्प्रिंट में सब कुछ रिवाइज हो रहा है? राइट. सो यहां पर क्या बन जाएंगे आपके? क्रॉस ब्रिजेस. क्या बन जाएंगे? क्रॉस ब्रिज, जो मैंने अभी आपको बताया था ट्रोपोनिन वाला क्रॉस ब्रिज. क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और आपको एक लास्ट चीज ये बता देती हूं. लास्ट चीज बेटा, आई डोंट थिंक सो किसी भी टीचर ने आपको अभी तक ऐसा समझाया होगा. प्लीज पे अटेंशन. यहां पर ओवरलैप हो रहा है. इज इट ओवरलैपिंग? देखिए ओवरलैप हो रहा है. Yes or no? Yes, ma'am. Right? So there is a cloth here with which I usually clean my spectacles. So this is my spectacle cleaning cloth. Right? This is. So once I cover it like this and I further cover it like this, can you see it is going to become more dark? And then when I do it like this, it's going to become less. So am I overlapping? So wherever I overlap, it's going to become thick. Therefore more dark. So this area is going to be light in between and dark around, more dark because there is overlap. And the central region has no overlap. So this is your H zone, your heller or your light zone. Yes, my dear Sonam.
and the line in middle is called your Minshendi or M line. Right? Done? Yes, absolutely. अब ये आपको पता चल गया. देखिए, is the head going up? अब आप मुझसे पूछ रहे थे ना, यहां एटीपी यूज हुआ तो हेड ऊपर गया, और दोबारा एटीपी यूज हुआ, हेड टू रिटर्न. डिड आई जस्ट डू दिस विद यू? Yes, can we call this cross bridge? Can I call this the power stroke? The power stroke. Calcium is released. Yes or no? Anil? So ये आपकी साइट्स हैं. कैल्शियम रिलीज होगा, साइट एक्सपोज होगी, मायोसिन हेड अटैच होगा. मायोसिन हेड के अटैच होने के लिए एटीपी यूज होगा. सिग्नल आएगा तो कैल्शियम रिलीज हुआ था फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर से सिग्नल आएगा, कैल्शियम विल गो बैक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, नाउ इट्स गोना गो बैक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन विल कम एंड अटैच बैक टू एक्टिव साइट्स. It is going to come back to original position. Understood? Yes, everybody. चलिए. Right? चलो. What is a tendon? I just told you. What is a tendon? Any doubts you have? Please feel free to ask me on the Telegram group. What is a tendon? What is a tendon? Tendon connects the muscles to bone. Ligaments connect the bone to bone. Yes or no? Tendon is a tough, non-elastic connective tissue that connects the muscles to the bone. It's a connective tissue. Blood is a connective tissue. Bone is a solid connective tissue. Cartilages are connective tissue. Tendons are connective tissue. Tendons connect muscles to bone. Ligaments connect bone to bone. Excellent. Excellent. Right? What are the functions of our endoskeleton? Do we have a skeleton inside the body? What are the functions of our endoskeleton? Can we quickly do this? Right? What are the functions of our endoskeleton? Does the endoskeleton support our body? अच्छा, कितने बच्चों को आज की क्लास में सारे फंडे रिवाइज हो गए? How many things were revised in today's class? Tell me. How many things were revised in today's class? Were it revised? Yes? आ जाओ. Support. So सबसे पहले skeletal system. The skeleton is a framework that supports an animal's body against gravity. It largely determines the body's shape. The shape of the body, the length of the body is all determined with the skeleton. The vertebrate skeleton is a system of muscles, operated levers. Right? There are two ends of a skeleton, voluntary muscle that attach to different bones. You can't go slap somebody and say, "Arey, my hand slapped you on its own." वो भी वापस थप्पड़ मारेगा और बोलेगा, "अरे, my hand also slapped you on your own." Right? You can't do that. Is that clear? It's voluntary. It's voluntary. Right? And there are various joints in the body with which we can move. When the muscle contracts, one bone is pulled towards the other. When it contracts, yes, see the muscle is contracting, one bone is pulled towards the other. It protects the internal structures. Do you have a rib cage? First 7 are true ribs, 8, 9, 10 are false ribs, 11 and 12 are floating ribs. Do you have a mediastinum? It's meant for protection. Blood cells. Does the long bone does hematopoiesis and the ends of long bone produce RBC? In the middle you have yellow bone marrow. Does the end of long bone does something called hematopoiesis? Yes or no? Why, Sneha? Get well soon. We will do that very soon, Hina. I've noted down your point. Mineral storage, the skeleton system stores calcium and phosphorus. So the skeletal system stores calcium and phosphorus. Ca3PO4 is being stored in the bones. They produce RBCs, they produce WBCs. Done, everybody? Ends of long bones. So this is your long bone, your femur. Right? Let me draw a nice femur for you. Right, so this is going to do RBC production, hematopoiesis. Is that clear?
Right? If I'm tall, when somebody was asking me yesterday that, ma'am, how tall are you? See my hand? It's gone so much above the screen. Yes. So if I'm tall, obviously I have a framework which is tall, and that's my skeleton. Can I have a skeleton till here? Can I have a skeleton till here? इसके ऊपर jelly थोड़ी ना है. So my skeleton is starting from here, and I'm bare feet. I'm bare feet. I'm not even wearing shoes. I'm absolutely bare feet. So that's a very good point for you. Why am I bare feet? Because in winter season, if you are bare feet, आपको नींद नहीं आएगी. राइट? अगर आप ऐसे कंबल रजाई में बैठे होगे तो ऑब्वियसली नींद तो आएगी ही. यस और नो? यस एवरीबडी. चलिए, सो लेट्स काइंड ऑफ मूव अहेड. डिविजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ये आपका एक्सियल स्केलेटन है. जल्दी से कर लेते हैं. ये आपका एक्सियल स्केलेटन है और इसके जितने भी अटैचमेंट्स हैं, दिस इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन. Appendicular skeleton. Is that clear? Your blue one is the axial skeleton and the other is your appendicular skeleton. Right? Axial skeleton के पास 80 bones है. Skull, sternum, ribs, vertebra. Ribs के बारे में मैंने आपको बताया. क्या बताया आपको ribs के बारे में? First 7 are true ribs. Backbone से sternum तक connected होते हैं. Right? First 7, 8, 9, 10 is false ribs. They are connected to the 7th one. 11th and 12th are floating ribs. Is that clear? 80 bones. MCQ question. The skull, the vertebra and the rib cage. The rib cage. Is that clear? चलिए. Right? Appendicular skeleton के पास 126 bones होती है. So this is your pelvic girdle, your pectoral girdle. Right? Is that clear? And your pelvic girdle and your pectoral girdle. Right? Consists of arms, legs, shoulders and the girdles. Arms, leg, right? तो आपका जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं, फर्स्ट 7 वो ट्रू रिब्स होती हैं. 8, 9, 10 are attached to the 7. 11 and 12 are your floating ribs. What are they? Your floating ribs. Good. Well done. How many bones are present in appendicular skeleton? How many bones in the appendicular skeleton? Come on, I just taught you. अगर एग्जाम में आ गया, hyoid bone is there. Hyoid bone is not related to any other bone. Very good, and you're answering very well. 126. ये आपका skull है. This is such a beautiful image. Frontal. This is your frontal bone. This is everything which I learned in college. You know, we used to even sit with skull. पूरी बॉडी की बोन्स होती है, रियल बोन्स. ओके, रियल बोन्स. तो बोन्स फर्स्ट ईयर में आपको जाके एमबीबीएस में बोन्स खरीदनी पड़ेंगी. और रात को बोन्स के साथ ही, मतलब ऐसे बेड पे बोन्स पड़ी होती थी, पढ़ रहे होते थे, वहीं खाना खा लेते थे. इमेजिन किसी की बॉडी की बोन्स के साथ वहीं खाना खा लेते थे. राइट? कई बार सो रहे हैं तो वहीं बोन पड़ी हुई है साइड में. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. शुरू में थोड़ा स्पूकी लगता है. बेड के नीचे बोन्स डाल देते थे. राइट? सुबह उठे बोन्स, बिकॉज अनैट लैब में तो बोन्स लेके जानी होती है, तो रात को बेड के नीचे बोन्स डाल दी. राइट? अरे बहुत, मतलब बड़े कई लोग तो ऐसे, मतलब जो स्कल होता है, स्कल के ऊपर स्कल पड़ा हुआ है, साथ में रोटी खा रहे हैं, एंड साथ में किसी का रियल स्कल कोई होगा जिसका स्कल है, वो प्लास्टिक नहीं होता था. राइट? इट इज अ रियल स्कल. सो यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस. अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर कर रहा है, सो आपको पता होगा बोन्स. राइट? एंड कई बार क्या होता था, सीनियर्स अपनी बोन्स दे जाते थे जूनियर्स को, फिर वो जूनियर्स दोबारा सीनियर्स बनते थे. तो कई बार बहुत पुरानी पुरानी बोन्स भी होती, तो वो एक्चुअली करते करते ना वो निकल जाती थी बोन्स. यू अंडरस्टैंडिंग? दिस टू जस्ट विदर ऑफ. तो बेड पे वो बोन्स का कई बार चूरा पड़ा हुआ है. जस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो इन अ वे. राइट? एंड दैट स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन. सो इफ यू एवर गो टू द डिसेक्शन लैब, you will get that smell of formalin. Right? Formaldehyde. And first time when you enter the anatomy lab, let me tell you, my dear kids, the first time when you will enter that anatomy lab, you will get so scared. Right? You will get so scared entering that anatomy lab. फिर तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है. फिर तो कई बार रात को भी 11-12 बजे कुछ काम है. राइट? कोई जर्नल छूट गई है, तो आप अकेले 11 बजे 12 बजे यू विल गो टू द एनाटॉमी लैब. राइट? नेटर्स की एटलसेस आती हैं. आई विल टेल यू विच एटलस टू बाय. यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डायग्राम्स. राइट? सो धीरे धीरे तो आपको आदत पड़ जाएगी. Yes or no?
राइट बट ये सारी बोन्स, ये फोरामिन्स, आपको सारे फोरामिन्स आपको पता होना चाहिए। फोरामिन्स पे फर्स्ट ईयर पे व्हेन यू एंटर फर्स्ट ईयर, सो फर्स्ट ईयर पे जो वाइवा होता है, तो वाइवा में क्या होता है, बोन्स पड़ी होती हैं। आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाओ, एक बहुत मजेदार कहानी सुनाओ। ओके यस एवरीबडी, आर यू रेडी? बहुत मजेदार कहानी। Yes everybody, okay excited? Are you there with me? Anatomy lab की बहुत मजेदार कहानी, आई थिंक इसके बाद आज की क्लास। ओके तो एक बार क्या हुआ, ये तो इतना एपिक जोक है, इतना एपिक जोक मैं आपको बता नहीं सकती। बी हियर एंड आई एम श्योर आप लोग इसको जरूर याद रखोगे जब आप कॉलेज में जाओगे। तो ये फर्स्ट ईयर की कहानी है एंड इफ द बॉय इज लिसनिंग, तो हमारी क्लास, चलो उसका नाम नहीं लेते, तो हमारी क्लास में एक लड़का था। मैं इतना बता देती हूँ कि वो जगह का नाम है अबोहर। तो अबोहर पंजाब के पास एक जगह थी, वहां से एक बच्चा हमारी क्लास में पढ़ता था, राइट और हमारे एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। सो एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक को सॉफ्ट प्रैक्टिकल्स कहते हैं, एक को हार्ड प्रैक्टिकल्स। बहुत अमेजिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। ओके वन आर सॉफ्ट प्रैक्टिकल्स, वन आर हार्ड प्रैक्टिकल्स। तो सॉफ्ट प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, डेड बॉडी पड़ी होती है आपके सामने एंड उसको डाइसेक्ट करते हैं। तो आपको 3-4 आपको पिक करना होता है, 3-4 पेपर्स। उन पेपर पे लिखा होता है आइडेंटिफाई ऑप्थेल्मिक नर्व, आइडेंटिफाई ट्राइजेमाइनल नर्व, आइडेंटिफाई वेगस नर्व। तो आपको क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करके मार्क करना है और अपने नाम की पर्ची लगा देनी है। सो द टीचर विल कम एंड वो आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो, जल्दी बोलता है ऐसे, आइडेंटिफाई दिस। तो फटाफट, और पूरा पता भी नहीं चलता कौन सा टिश्यू, कौन सी नर्व, सब कुछ कहता है आइडेंटिफाई ट्राइजेमाइनल नर्व, तो आप फटाफट ट्राइजेमाइनल नर्व आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई वेगस नर्व, तो आप फटाफट वेगस नर्व को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आपके ये सॉफ्ट प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट तो आपको 3-4 सॉफ्ट टिश्यूज बोलेगा, स्प्लीन आइडेंटिफाई करो, तो फटाफट आपको बॉडी में स्प्लीन आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, राइट बोलेगा अपेंडिक्स आइडेंटिफाई करो, सो लाइक दिस, राइट तो नेजल कॉन्के होते हैं, बोलेगा मिडिल कॉन्का निकाल के दिखाओ मुझे, तो आप मिडिल, एथमोइड बोन, वोमन बोन, ये सारी चीज। तो ये आपका सॉफ्ट प्रैक्टिकल हो गया, डन। उसके बाद आप क्या होगा, ऐसे लाइन से उन्होंने फ्लैग्स लगाए होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स पड़े होते हैं, हेड एंड नेक तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, छोटे छोटे पार्ट्स पड़े होते हैं, उन पर उन्होंने फ्लैग लगाए होते हैं, फ्लैग्स। तो आप अपनी जर्नल में भरते चले जाते हो, आपको जो फ्लैग होगा, आपको जो लग रहा है कि क्या है फ्लैग, आप लगाते चले जाओ और पूरा प्रैक्टिकल हॉल में ऐसे घूमते हैं। फाइनली आप एक जगह पे जाओगे जहां बोन्स पड़ी होती है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टील के डब्बे पड़े होते हैं, उनके अंदर बोन्स पड़ी होती हैं, राइट बोन्स के टुकड़े टुकड़े करके रखे होते हैं पूरे, और सामने एग्जामिनर बैठा होता है। फिर एग्जामिनर आपको बोलता है पिक वन। क्या बोलता है एग्जामिनर? बहुत मजा आने वाला है। एग्जामिनर क्या बोलता है पहले बताओ, एग्जामिनर क्या बोलता है? पिक वन। क्या बोलता है एग्जामिनर? पिक वन। पिक वन क्या बोलेगा एग्जामिनर? हमेशा यूजुअली 99.9% एग्जामिनर कहता है पिक वन। तो पिक वन से क्या मतलब हो, आप एक बोन उठाओगे, बहुत मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनो। तो आप एक बोन उठाओगे और आप एग्जामिनर को दे दोगे, एग्जामिनर उसको देखेगा, उस पे 2-3 ब्लैक कलर के मार्क्स मार्क करेगा। हर एक बोन पे फोरामिन होता है, हर एक बोन पे रिजेस होती हैं, तो उनको मार्क करेगा एग्जामिनर, या आपको या एक पॉइंटर से पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, फिर आप रख दोगे, फिर बोलेगा पिक अनदर वन। फिर आप कोई बोन उठाओगे जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि इसके सारे क्वेश्चंस मैं आंसर कर पाती हूं या कर सकता हूं, फिर वो बोलेगा पिक वन, फिर आप बोन उठाओगे, राइट। कई बार बहुत सर्वाइकल वर्टिब्रास तो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, पता ही नहीं चलता ये C1 है कि C2 है। सिर्फ एटलस और एक्सिस आइडेंटिफाई करना आसान होता है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। और रिजेस, एक एक रिज, तो जैसे कल की परसों की क्लास में मैं आपको कभी पढ़ाऊंगी, अभी आ रही है क्लासेस, राइट। सो ऑर्बिटल रिजेस, जाइगोमैटिक बोन के पार्ट्स होते हैं, एथमॉइड, वोमर। एक होती है यहां पे स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ स्फिनॉइड कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, अदरवाइज बोन्स आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अब ये बच्चा, ये लड़का है हमारी क्लास का, हाँ, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी तक हम लोग वी आर ऑल बैचमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। तो ये बच्चा गया और ये बैठा, पढ़ाई में एवरेज, ढीला ढाला। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में सब मस्ती मारते हैं, आपको पता है मैंने भी कॉलेज बंक करके मूवी देखने गई हुई हूं, राइट। कैन यू इमेजिन, वाली मैम जो अभी इतनी पढ़ाकू है, तो फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे मस्ती मारते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद आए हुए आप लोग, तो सारे बच्चे मस्ती मारते हैं, हाँ। तो क्या हुआ, तो ये जो बच्चा है ना, ध्यान से सुनो, ये बच्चा बैठा जाके, तो इसको एग्जामिनर बोल रहा है पिक वन, तो कह रहा है नो सर इट्स ओके। ध्यान से सुनो, एग्जामिनर कह रहा है नो नो पिक वन, और एक्सटर्नल एग्जामिनर है, फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम ऑफ फर्स्ट ईयर, फाइनल एग्जाम ऑफ फर्स्ट ईयर, कैन यू इमेजिन, राइट। तो एग्जामिनर दोबारा पूछ रहा है पिक वन, कह रहा है नो सर इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू पिक वन। हाँ, एग्जामिनर फुल गुस्से में, आई एम टेलिंग, और पता है इंटरनल एग्जामिनर देख रहा है इसको हो क्या गया है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। अब एग्जामिनर बोल रहा है हड्डी उठाओ तो उठाओ, इसको हुआ क्या है आज। इंटरनल एग्जामिनर भी ऐसे खड़ा हुआ है कि ये बच्चा तो आज फेल होने वाला है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस टाइप्स रिपीट करने वाला है, हुआ क्या। तो कह रहा है पिक वन, कह रहा है नो सर इट्स ओके थैंक यू, कह रहा है आई एम ऑर्डरिंग यू पिक वन।
वो बिस्किट उठाता है, चाय में डुबोता है और खा लेता है। उसको ये लगा, अभी अभी एक्सटर्नल एग्जामिनर की चाय आई थी और बिस्किट आए थे साथ में, उसको हड्डी की जगह लगा, एग्जामिनर बोल रहा है कि मेरा बिस्किट उठाओ, मजे से बिस्किट उठाता है, एग्जामिनर की चाय में डुबोता है और खा लेता है। कैन यू इमेजिन? हे भगवान, उसका जो हाल हुआ। और हमारे सारे बैच को एक्सटर्नल एग्जामिनर वेंट क्रेजी। एक्सटर्नल एग्जामिनर ने सोचा हद हो गई, अब तो मैं इस पूरे बैच को फेल कर दूंगा। एंड उसको इमेजिन, कहता है नो सर नो, कह रहे नो नो यू पिक वन, लाइक नो सर आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू पिक वन। मजे से बिस्किट उठाता है, अच्छे से चाय में डुबोता है और खा लेता है। कैन यू इमेजिन? यस एवरीबडी, राइट? ओ गॉड, दिस इज अ रियलिटी, एब्सोल्युटली थग लाइफ। पर तब थग लाइफ वाला वर्ड नहीं था, बट दिस इज द रियलिटी। तो ये बोन्स तो हमें बाय हार्ट करवाई जाती है एग्जाम में। ये दिख रहा है आपको स्फिनोइड प्रोसेस? हाय, सी ऑल द मेमोरीज हैव कम बैक। दिस इज योर स्फिनोइड प्रोसेस। इस पे तो 100% 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको स्फिनोइड प्रोसेस? इसमें मसल की अटैचमेंट होती है, जाइगोमैटिक मेजर, जाइगोमैटिक माइनर, राइट? इसमें मसल्स की अटैचमेंट होती है। तो हमसे जाइगोमैटिक माइनर, जाइगोमैटिक मेजर पूछी जाती थी। तो यहां पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल होती है जो जाकर सीधा सीधा आपके स्फिनोइड प्रोसेस पे लगती है। दिस मसल, इफ यू लुक केयरफुली, दिस मसल इज कॉल्ड योर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ये आपका मास्टॉइड प्रोसेस होता है। तो मास्टॉइड प्रोसेस पे और स्फिनोइड प्रोसेस पे 500% एक क्वेश्चन आता था। हाउ ब्यूटिफुल, सी आज सब कुछ याद आ गया। यस, वो पास हो गया। आपको क्या लगता है वो पास, आपको क्या लगता है वो पास हुआ होगा? कम ऑन गाइस, उस बच्चे की याद में 1 लाइक तो बनता है आज की क्लास के लिए। आपको क्या लगता है? नहीं, पास हो गया था। तो बस उस बच्चे की भी गलती नहीं है। अभी अभी बाहर कोई चाय रख के गया है, उसको क्या पता कि वो एग्जामिनर बोल रहा है हड्डी उठाओ। हमारा भी तो फर्स्ट प्रैक्टिकली था। यस, डेफिनेटली एग्जामिनर ने पास कर दिया, बट इट्स वेरी एनाटॉमी में तो बहुत लोग फेल होते हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल्स में बहुत लोग फेल होते हैं। एनाटॉमी की जर्नल बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके कोई सीनियर्स पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, तो उनसे पूछिए एनाटॉमी के जर्नल का कितना ज्यादा काम हो जाता है, राइट? एक बुक आती है बीडी चौरसिया, उसकी 3 वॉल्यूम्स होती है, तो पूरी बीडी चौरसिया याद करनी पड़ेगी आपको। एनाटॉमी की बुक होती है। यस, किसी ने देखी है बीडी चौरसिया? हैज एनीबडी अवेयर? बेचारे को भूख लगी होगी, बिल्कुल सुबह से लगा होगा। यस, हैव यू हर्ड ऑफ अ बुक कॉल्ड बीडी चौरसिया? सो यू विल हैव टू रीड एंड रिमेंबर एवरी पेज ऑफ बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया सिर्फ इन चीजों से फुल है। तो एक काम करते हैं, इस मजेदार चीज पे आज की क्लास को खत्म करते हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। डन एवरीबडी? डिड यू एंजॉय द लेक्चर? यस, डिड यू एंजॉय? सो इसी बात पर 1 लाइक, 1 शेयर, 1 सब्सक्राइब नाउ गाइज। डन? बाय गाइज, सी यू, बाय बाय।